बताइए, सीता पहले राम पहले? सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, माता पिता। और ये क्यों है? When the universe started, it started with energy, शक्ति। तो इस संसार में जो कुछ भी होगा उसमें शक्ति पहले रहेगी। Is built on a bedrock of rich cultural heritage, and today's discourse on building a great nation, unveiling the timeless wisdom of Rama, will unravel the timeless wisdom embedded in the narrative of Lord Rama, and more importantly, its relevance in shaping the destiny of our nation so far. Our mission at FICCI Flow and YFlow has always been to empower and inspire. And today's session promises just that. We are privileged to have with us a distinguished speaker, a scholar in his own right, Dr. Sudhanshu Trivedi, a member of the Rajya Sabha and national spokesperson for the Bharatiya Janata Party. Dr. Trivedi's insights are invaluable, and we eagerly await his perspective on how the timeless wisdom of Rama can serve as a guiding light for our nation in today's contemporary world. Now, I would like to invite National President Sudhaji to give her welcome address. Good afternoon to everybody. Borrowing from the words of Sadhguru, the nation is not the land, it is the people. In transforming the people, we shall have a great nation. What truly makes a nation great is its people, and as individuals, as leaders, as citizens of this country, we can draw immense inspiration from the exemplary life of Lord Ram. I'll leave you here, and I thank you for being a part of today's deliberation. And it's so lovely to see so many gentlemen here, and a huge welcome from Flow to all of you. And thanks, March, and it's my pleasure to welcome everyone to this lovely evening where we will all learn from Dr. Trivedi's discourse. Thank you so much. Now, I would like to introduce past president of Flow and day chair of a wonderful event today, Namita Gautamji. Friends, we all know Lord Ram as Maryada Purushottam. He is venerated as the embodiment of a perfect human being and an ideal king. Under his rule, Ayodhya earned the name Ram Rajya, synonymous with the golden era in governance. And when we speak of ideal governance and of leadership that stands the test of time, the significance of today's session cannot be overstated. To guide us in this journey into the timeless wisdom of Lord Ram and to bring in Ram Rajya in our Bharat, we have with us none other than Dr. Sudhanshu Trivedi. Today we are here, as Namita ji has said, it's a time which is to be remembered as India's second tryst with destiny. But you know, from where this term started, on 16th of May 2014, when we got clear majority under the leadership of Shri Narendra Modi ji. On 18th of May 2014, the Sunday Guardian of London has written an editorial. And the heading of that editorial was India's second tryst with destiny. And you know what was written in that article? It was said that 16th of May 2014 should be remembered in Indian history as a day of second independence. And you know what explanation they have given? They said that though India got independence on 15th of August 1947, for most of the period of the time, those who were ruling were carrying a legacy of the British colonial mindset in their action, thoughts and deeds. But for the first time, an ideology has got absolute power, because during Atalji's time, we were not having the absolute power. It said that a thought, an ideology has got the absolute power which is having no connection with the British colonial legacy, which is purely Indian in its inception and inspiration. So that's why they said
it is should to be considered as India's second test. And you remember what happened? That transformation was not just to change the government, it was to change the mindset. And that thing started, if you remember, the first deliberation of Prime Minister Shri Narendra Modi on 15th of August 2014, he has taken up a couple of issues which were considered as non-political, useless for a political person. And they were saying that these are the social issues, why he is speaking as Prime Minister. What were those issues? Swachh Bharat Abhiyan. They said, स्वच्छता का क्या मतलब है? स्वच्छता ठीक है. That is the one thing which is to be taken care in the mind, but has nothing to do with politics. And Beti Bachao, Beti Padhao. They also said this is also a social issue. It has nothing to do with hardcore politics. But we said that the change was brought by the people of India, not for change of the government only, but the change of the mindset. And you have seen that now in the last 10 years, there was a time कि हाथ में कोई रैपर हो, पेपर हो, कुछ भी हो, जितनी easily लोग फेंक दिया करते थे, अब ऐसा नहीं है. People look for the proper dustbin or the proper place to throw it, and that's how the mindset had changed and how it had affected the society and the economy. On an average, more than 6,000 to 10,000 rupees uses to be spent by a poor fellow because of the diseases arising out of the non-clean atmosphere. And on the issue of Beti Bachao, Beti Padhao, what happened that now there is a huge change in the gender ratio of newly born child, and the last year was the first year in India's independence, and for that matter from where the census has started being counted, that among the newly born child, the girls were more than the boys. That was the change was brought. Even in the states like Haryana and Rajasthan, in which the sex ratio was considered very, very much skewed, there also a huge change has come. That's why we are saying that it was being done to brought the change in the mindset. Another change was, the third thing which Prime Minister spoke was Jan Dhan Yojana. At the time, since you people are from the entrepreneur's side, you must be knowing that the finance ministry people were not ready to accept that more than 1 crore or 1.5 crore can be opened before 31st of March 2015. Even RBI people were saying at the most 2 or 2.5 crores. But Prime Minister said nothing doing, it has to be 8 crore by 31st of March 2015. Now there is 50 crore accounts. Now then the question arose that, okay, you will open the account, from where the money will come. Then PM said, we will bring the money. You first open the account. He was having DBT in his mind. So once accounts are open, then the direct benefit transfer was done. It has brought two things. Number one, direct to the beneficiary. Number two, there is no intermediary in between. And third thing, there is substantive amount of money in the banks. And fourth thing was also, when the intermediaries has wiped out, around 1 lakh crore rupees was saved. Because so many fictitious identities were there, which were not existing at all, were just existing on paper, and everything is vanished. And now we are having 50 crore accounts. And the second thing he was having in mind, Mudra Yojana. Now if you want to really empower the poor people, previous governments used to have a thought कि उनको कुछ पैसा दे दो. Now people used to say the average loan in Mudra Yojana is just 78,000. Means around 1 lakh or something most of the people are taking. 1 lakh may be a very meager amount for the rich people or upper middle class. But for the poor people, if you give 1 lakh rupee in cash, so what will happen? First, it will not reach as 1 lakh. It will reach at 30 or 40,000 because the intermediaries will take away. And second thing, even if he or she gets 1 lakh rupees, they will spend in few days or maybe a month or so, and then again they will be as it was. But once it is coming as a loan, then definitely they will use it in entrepreneurship, and that will create at least few job opportunities or at least some additional opportunities of job. So now 44 crores Mudra Yojana loans has been taken, and the interesting fact is out of those 68% beneficiaries are women. So 68 means more than third beneficiaries are women at the grassroots level.
So empowering started, of the women started at the grassroots level. Then he was having the other thing, the JAM portal. Directly you can apply to any government site. Even if you are not a big company, you are not a registered company, still you can, as a normal vendor, you can apply. For that, you must have two things. One, bank account, and another was digital connection. So from there to digital revolution, to Notebandi and others, you can understand that was a huge transformation which has been undertaken. And now comes the next step. Now point out those areas which were not being tapped by the previous governments. One of the biggest area was defense production. Now India is capable of making intermediate range ballistic missiles on its own, aircraft carrier on its own. And previously, if you think that India was having the capability of launching the missiles, but were not having the capability to build the assault rifles, this doesn't sounds logical. We were having the capability to send the satellites, but not having capability to make the fighter planes. It doesn't sound logical. So the logical conclusion was that we were not interested in making these things. Now we become interested, so we become self-sufficient. Now 1 lakh crore rupees per year is now the export of India on the defense sector, which was not previously there. Now comes step by step. Then गरीब की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है? वो होती है बीमारी. Then came the Ayushman Bharat Yojana. Then the second biggest requirement was what? House. So Garib Awas Yojana आई, in which there were 4 crore beneficiaries up till now, and out of those 4 crore, the registry which is being done in the name of the family member, 3 crore are women. I can say with firm confidence that before 2014, among the poor classes, 3 crore women would not have been there who are having the legitimate registered property in their own name of their own house. That's how the empowerment started, and then gradually is transformed further. Then the next thing comes the national security. Then comes the national development, economic growth. First empower the poor, then go for development, then go for security, then go for development. Now what comes next? आप डेवलप कंट्री बन भी जाएंगे, अगर आपके पास अपनी आइडेंटिटी नहीं है, then what you will do? You can never become a world leader. Because I remember around 10 years back, before 2014 government, I was on a TV debate. On that day, Sri Amit Shah ji, who is the present Home Minister, was as General Secretary, went to Ayodhya and pledged that we will build a Ram temple there. And Rajnath Singh ji, who is present Raksha Mantri, he has gone to Prayag, and among the Sant, he has said that we are having a firm conviction of paving the way for Ram temple. So, one of the spokesperson has said, what you people are talking about? Today, India is the youngest country of the world. I'm talking 2013, end of the 2013 or beginning of the 2014. He said, India is the youngest country of the world. Now, the younger generation is aspiring to achieve excellence in technology. They want to make India an economic superpower and emerge as an advanced country. Where does Ram temple fits in the emerging, young, entrepreneurial, technologically advanced, economical superpower India of 21st century? Then I said, sir, your vision is short-sighted. We doesn't want only to become the economic superpower. Economic superpower बनने से क्या होता है? Japan is economic superpower. Which is the country which is having highest per capita income? Singapore. Korea is economic superpower. Even Taiwan, Hong Kong, they are having economic superpower. But are they the world leaders? No. If you want to become the world leader, then other than economic power, other than the military power, other than the intellectual power, you must have certain set of values by which you can motivate, inspire and guide the world.
And if all those values by which India can inspire and guide the world, they are there in one character, that is Bhagwan Sri Ram. How come? भाई दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठता है, सर काट के, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा. इन कंट्रास्ट टू दैट, इफ देयर इज एन एग्जाम्पल कि भारत की खड़ाऊ रख के शासन करना, एंड फॉर वन वचन ऑफ इट्स फादर he went to forest, I think this is the highest symbol of moral values in the entire world. Second thing, today if you see that the entire world is having a geopolitical problem, that one country wants to take over the other country, smaller countries, like when Iraq tried to take over Kuwait, China has taken over Tibet, now they are eyeing towards Taiwan, Russia has taken over Armenia, now the war is going on in between the Ukraine. So the problem of annexation, if annexation is not possible, create a puppet government there, that is subjugation, or create your deputy there. And if not possible, then at least create a treaty and create a domination by using any treaty. But अगर जब भगवान राम ने अयोध्या को जीता, लंका को जीता, even बाली का साम्राज्य जीता, has he annexed those kingdom? No. Has he appointed any deputy there? Viceroy yours? No. Has he got anything treaty done that you have to take permission from Ayodhya to take any decision here? No. So I think in this era of clash of civilization, if anything which can guide the entire humanity, that the coherence and coexistence can be there, it is only Bhagwan Ram. तो 21वीं सदी का महान भारत बगैर राम मंदिर के पॉसिबल ही नहीं था. और आज अगर आप देखें, the time has changed so. When this time has come, on 22nd of January, in which less than 72 hours have left, कितना बड़ा चेंज आया है इस देश में. There was a time around 32 years back, when this 33 years back, when this movement started. What was our foreign exchange reserve? In 1991, less than 1 billion. India was on the verge of economic bankruptcy. Gold were mortgaged. In April 91, in August and September 91, twice devaluation of rupee. Rate of inflation 17%. Growth rate virtually negative. At that time, people were talking about masjid. And they are saying that we are not talking about real development or the real issues. What was the real issue at the time? The real issue was take the economy out of the crisis. Real issue was to create a job. Real issue was to create an atmosphere for development. और अब जब मंदिर बनने जा रहा है, we are having a foreign exchange reserve of 620 billion. We have become the 5th largest economy, 4th biggest stock exchange, 3rd biggest automobile manufacturer, 2nd biggest mobile handset manufacturer, number 1 country in the investment of infrastructure. Our investment in infrastructure is more than America at the time. And not only this, among all the G7 and G20 countries, which has never happened in the previous history, India is having the highest growth rate with 7.8% among all topmost countries of the world. और इतना ही नहीं, हम चांद के अछूते कोने सदर्न पोल को छूने वाले दुनिया के पहले देश हो गए. And इतना ही नहीं, when any country lands anywhere on any planet, the country has a right to name that point according to its wishes, and Prime Minister has given the name of that point to Point Shiv Shakti. तो आप ये समझिए कि उस पॉइंट शिव शक्ति के साथ और नारी शक्ति वंदन अधिनियम इंडियन पार्लियामेंट में पारित हो गया, which has paved the way for representation of women in parliament and the assemblies. मैंने आपसे क्या कहा कि the empowerment started with mere जनधन योजना,
Mudra Yojana and taken up to empowerment in the parliament. That's how the process has started. और इसके बाद राम का मंदिर बनने जा रहा है. और जब शिव शक्ति की बात कहते हैं तो इंडिया इज द ओनली कल्चर इन द एंटायर वर्ल्ड इन विच इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड द फेमिनिन एलिमेंट इज देयर. अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल द कल्चर्स ऑल द सिविलाइजेशन ओनली एंड ओनली मैस्कुलिन एलिमेंट इज देयर इन द गॉड. स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है. ईश्वर है तो सिर्फ पुरुष है. मगर हमारे यहां शिव शक्ति पॉइंट है. शिव शक्ति का अर्थ हुआ कि भगवान शंकर में शंकर और पार्वती के स्वरूप मिलकर कैसे सृष्टि की रचना करते हैं. कालिदास ने कहा है रघुवंश में, वागार्थमि संप्रक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो. इट मीन्स द पोएम is made with what? The word and the meaning. Vak and earth. The word and its meaning. They conjunct together and then form a poem. In the same manner, the Ardhanarishwar aspect of Bhagwan Shankar makes this world, create this world and goes ahead with this world. और उन्होंने फिर ये कहा कि जैसे शब्द और अर्थ अलग नहीं हो सकते. Meaning and word cannot be separated, because if there is no meaning, word has having no sense, and if there is no word, meaning cannot be expressed. अब बताइए दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल है? और ये ऐसा ही नहीं है. अगर आप देखें, अब आइए राम की कथा में. लोग कहते हैं कि ये तो एक कहानी है कि सीता जी का हरण किया रावण ने, भगवान का जन्म हुआ था रावण के वध के लिए. कभी आपने सोचा कि रावण ने सीता जी का हरण क्यों किया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी? और जब सीता जी का हरण किया तो सिर्फ सीता माता की छाया का ही हरण क्यों कर पाया था? इज दिस जस्ट एन स्टोरी? नो. हु इज राम एंड हु इज सीता? राम, देयर इज अ वर्ड इन संस्कृत विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द धातु रम. रम एक हिंदी संस्कृत में वर्ड है रमना. बहुत मन रमता है, रमणीक स्थान, रमता जोगी. इट मीन्स द थिंग इन विच एनीथिंग गेट्स सेटल्ड. सो द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड राम इज रमन्ते इति रामा. द एलिमेंट इन विच द इंटायर क्रिएशन इज सेटल्ड, दैट इज राम. एंड राम हैज ए फाइट विद whom? रावण. रावण इज हैविंग 10 heads. और एक सर कटता है, दूसरा उगाता है. What does this mean? Why is having 10? He could have been having 15, 20, 50, 5. 10 number represents the 10 senses in our body. 10 इंद्रियां. और एक सर कटता है, दूसरा उगाता है. It means किसी भी इंद्री की एक इच्छा पूरी करिए, immediately it will get replaced by other. The person is not having a car, the moment कार आया कहता मारुति क्या है यार, कम से कम होंडा सिटी होनी चाहिए. जिस दिन वो आएगी तो कोरोला होनी चाहिए, फिर वो आएगी तो मर्सिडीज होनी चाहिए, फिर वो आएगी तो पोर्श होनी चाहिए. वहां से लेके जेट तक चले जाएंगे. ये है रावण के बढ़ते हुए सिर, विच द गॉड कैन नॉट स्टॉप. अब वो कहां से स्टॉप होगा? वो कहते हैं उसकी नाभि पे मारी है. नाभि मीन्स, अब देखिए यहीं से इंडियन कल्चर की फिलॉसफी, हमारा रिलीजन और साइंस कैसे कनेक्ट होता है. आप उसके सर काटते रहिए, सर उगते रहेंगे. द सोर्स इज एट द सेंटर, देन यू कैन कंट्रोल इट. अब इसी ढंग से आप समझिए, जीरो हमने खोजा था एंड वी बिलीव इन सर्किल, cyclic process of the nature and cyclic process of birth and rebirth. If you keep on moving on the circumference of a circle, you will never find an end. The basic core and end is there at the center. तो जिंदगी में आप इंद्रियों की परिधि पर घूमते रहेंगे तो कभी आपको वास्तविक अपना मूल समझ में नहीं आएगा. जिस दिन उन परिधि से बाहर जाकर केंद्र में उतरेंगे, उस दिन समझ में आएगा. और केंद्र में who will destroy it? Ram, the divine element that beholds the entire nature. It will destroy the extrovert tendency of all the 10 senses. Dashanan उसका नाम है. Dash Anan, 10 mouth. And it is having mouth, that is open mouth. The extrovert tendency of all the 10 senses. And Ram पैदा कैसे होंगे? Who is the father of Ram? Dashrath.
जब दशों इंद्रियों को रखने की कैपेबिलिटी आ जाएगी, when you will be able to control all the 10 senses, then a divine element will emerge in you and that will destroy extrovert tendency of all the 10 senses, then the dharma will established. अब आप यह समझिए कि सीता और राम का क्या संबंध है. इफ राम इज अ एलिमेंट विच बिहोल्ड्स, अब तो बिग बैंग थ्योरी मानी जाती थी, बट अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो फोटोएं दी हैं उसमें बहुत सी गैलेक्सीज हैं जिनकी की लाइफ बिग बैंग से ज्यादा दिखाई पड़ रही है. नाउ द न्यू थ्योरी इज दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स गोज ऑन. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यूनिवर्स कम्स इन इक्विलिब्रियम, then again a creation, then it settles down again in equilibrium and it goes on. So when the creation starts, it has to start with Shakti. And the element which is beholding it is Ram. और जैसे ही क्रिएशन स्टार्ट होगा वो है सीता, शक्ति. इसीलिए कहा गया है अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी. मीन्स राम और सीता क्या हैं? वो अनादि हैं, वह शक्ति हैं जो सदा भगवान शंकर के साथ उनके वाम भाग में विराजमान थी. शी हैज टेकन ए फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी. तो अब अगर आप इसको इस तरह समझिए कि पूरी राम की कथा हमारे अंदर भी घटित होती है और यूनिवर्स में भी घटित होती है. व्हेन दिस एनर्जी स्टार्ट्स, और रावण क्या है? 10 सेंसेस, यानी जो एनर्जी ने यूनिवर्स को क्रिएट किया है उसका पार्ट है. इफ एनीबडी हु इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस क्रिएशन वांट्स टू कंट्रोल द ओरिजिनल सोर्स ऑफ दिस क्रिएशन, दिस कुड हैव बीन हिज डिजायर, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. दैट्स व्हाई वो सीता जी की सिर्फ छाया का हरण कर पाएगा, रियल शक्ति का कभी नहीं. इसका अर्थ यह हुआ कि जो सीता को कैप्चर करने की कोशिश है रावण की, वो ये दर्शाता है कि सम टाइम वी बिकम इल्यूजन एंड वी थिंक दैट बाय यूजिंग अवर वर्ल्डली पावर एंड वर्ल्डली अफेयर्स वी विल बी एबल टू कंट्रोल एंड कैप्चर द ओरिजिनल क्रिएटिव एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स, विच इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए मैंने आपको पहले भी जैसे बताया, कई बार इस ढंग की बहुत सी चीजें हमारे दिमागों में राइट और रॉन्ग भर दी जाती हैं कि भाई राजा दशरथ के 3 रानियां क्यों थी? वाई नॉट 1 एंड वाई नॉट 2 और 4? उसका रीजन है जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब इस शक्ति को कंट्रोल करना है तो मीडियम कौन बनेगा? दशरथ के 4 बेटे हैं, वो 4 ही बेटे क्यों हैं? वो भी तो 1 भी हो सकते थे, 2 भी, और 3 भी, 5 भी. वाई 4? वो 4 इसलिए हैं कि जो अभी बोला उन्होंने, राम विग्रहवान धर्म, ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष. राम धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ है, लक्ष्मण काम है और भरत मोक्ष है. जुड़वा कौन है इनमें? लक्ष्मण और शत्रुघ्न. एक काम यानी कामना मीन्स डिजायर, और शत्रुघ्न क्या है? अर्थ मीन्स फुलफिलमेंट. डिजायर एंड फुलफिलमेंट तो जुड़वा ही होंगे. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. इफ देयर इज अ डिजायर देयर हैज टू बी फुलफिलमेंट. और ऑल दीज 4 थिंग्स कैन नॉट ओरिजिनेटेड, कैन नेवर ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स. धर्म सतोगुण से होगा. तो राम की माता कौशल्या है, सतोगुण की प्रतीक. डिजायर एंड फुलफिलमेंट रजोगुण है. तो सुमित्रा जी रजोगुण की प्रतीक हैं, तो वो शत्रुघ्न और लक्ष्मण की माता हैं. और केकई तमोगुण की प्रतीक है. मोक्ष कैन ओनली बी अटेन्ड आफ्टर पासिंग थ्रू तमोगुण. इसलिए 3 रानियां जरूरी हैं, क्योंकि अगर दशों इंद्रियों को रखना है तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों पे कंट्रोल होना चाहिए, नॉट ओवर वन. दैट्स व्हाई इट इज हैविंग ए वेरी डीप फिलोसफिकल एम्बेडेड मीनिंग. व्हाट, और कोई ये ना समझे कि इट इज अ कहानी. कोई कहेगा इसका मतलब तो ये कहानी हो गई. कहानी नहीं है. इसीलिए क्या कहा जाता है? राम लीला. वो भगवान जो एब्सोल्यूट हैं, जो पूरे यूनिवर्स को होल्ड करते हैं, जब हमें कोई शिक्षा देना चाहते हैं तो वो एक ऐसी लीला रचते हैं जो सिंबॉलिकली हमें सब कुछ समझाए. जैसे इफ यू वांट टू टीच ए स्टूडेंट एट द एलिमेंट्री लेवल इन नर्सरी एंड केजी,
तो कभी आप उसको पपेट बना के दिखाते हैं, कभी आप उसको कागज पे सिंबल बना के दिखाते हैं. इट डजंट मीन कि आप रियल नहीं है. अगर आपने चेहरे पे कोई मास्क लगाया बच्चे को समझाने के लिए, तो यू आर नॉट द मास्क. यू हैव जस्ट पुट द मास्क सो दैट लिटिल चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड. तो इन द सेम मैनर भगवान ने ये लीला की, इसलिए इसमें इतना गहरा एम्बेडेड मीनिंग है. और आप छोटी सी बात मैं इसलिए भी बताता हूं कि इसमें सिर्फ मैं स्त्री पात्रों की बात करता हूं. रामायण में 3 स्त्री पात्र हैं जिनको दंडित किया गया. एक मंथरा, जिसे गुस्से में आके शत्रुघ्न ने लात मारी थी. सूर्पणखा, जिसके नाक कान काटे थे लक्ष्मण ने. और ताड़का, जिसका वध किया था राम ने. व्हाई इट हैपेंड सो? भाई शत्रुघ्न ही मंथरा को लात क्यों मारेंगे, और लात ही क्यों मारेंगे? और सूर्पणखा के नाक कान ही क्यों काटे जाएंगे, और लक्ष्मण ही क्यों काटेंगे? शत्रुघ्न क्या है? अर्थ. मंथरा क्या है? लोभ. अर्थ तब धर्म सम्मत होगा जब वो लोभ को लात मार सके. देन इट विल बी धर्म सम्मत. अब आप आइए, सूर्पणखा क्या है? काम, वासना. पहले वो कहती राम से शादी कर लो, नहीं तो तुमसे ही शादी कर लो, और चेहरा उसका दूसरा बना हुआ है. लक्ष्मण क्या है? काम, कामना के प्रतीक. काम तब धर्म सम्मत होगा जब वो वासना का डिस्टॉर्टेड चेहरा सामने देख सके, रियल एंड डिस्टॉर्टेड. इसलिए सूर्पणखा के नाक और कान ही काटे जाएंगे. और ताड़का क्या है? अहंकार, ईगो. अहंकार को सिर्फ दंडित करने से काम नहीं चलता है. लस्ट कैन ओनली बी पनिश्ड, काम चल जाएगा. जो लोभ है वो भी पनिश करने से काम चल जाएगा, बट एरोगेंस हैज टू बी डिस्ट्रॉयड. इसलिए ताड़का का वध होगा. और एरोगेंस कौन डिस्ट्रॉय करेगा? धर्म. तो वो राम ही वध करेंगे. इसीलिए मैंने कहा कई बार क्या होता है, बहुत एलिमेंट्री बेसिक लेवल की चीजें जो हमारे यहां किसी ने नहीं पढ़ी, और हमारे दिमाग में मैकॉले और मार्क्स के माइंडसेट के चलते हुए बहुत सी ऐसी चीजें दिमाग में भर दी गई, और हम उससे कैरीड अवे हो जाते हैं. और जब कैरीड अवे हो जाते हैं तो हमें उसका मीनिंग ही नहीं पता, और हम उस पर डिस्कशन करने लगते हैं. जैसा मैंने कई बार एग्जांपल दिया, इफ समबडी वांट टू बिकम ए डॉक्टर, फर्स्ट ही और शी शुड learn zoology, botany, chemistry, then take an admission in the MBBS, then do the post graduation, then do the super specialization. तब कुछ बोले, यहां सुपर स्पेशलाइजेशन छोड़िए, किसी ने एलिमेंट्री ही नहीं पढ़ा है, और कमेंट सब करने लगे. मतलब यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द टर्म्स. लाइक कोई ये कहे कि मैंने इंग्लिश तो पढ़ी है, एंड द सेम इंग्लिश इज रिटन इन द medical books, so I can interpret all the medical books. Is it correct? मैंने इंग्लिश पढ़ी है, इंजीनियरिंग की सारी बुक्स में इंग्लिश ही तो लिखी है, हम इंटरप्रेट कर लेंगे. इज इट करेक्ट? अब जैसा मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं इंजीनियरिंग का एग्जांपल देता हूं. इंजीनियरिंग में आप जब फिजिक्स में मास का मतलब क्या होता है? देयर इज वन बॉडी विच इज हैविंग अ सर्टेन मास, एंड मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स. अब अगर नॉर्मल इंग्लिश में मास का मतलब, मासेस का मतलब जनता, और जनता का एक्सेलरेशन मतलब आंदोलन हो जाता है. सो अगर आप बगैर एलिमेंट्री बात को समझे हुए इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो उसी ढंग से वो चीज आएगी. और ये मैं एग्जांपल आपको दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने पहले भी कहा है, दिस इज बीन सिस्टमेटिकली डन टू कैप्चर द माइंडसेट ऑफ यंगर जनरेशन. आई वुड रिमाइंड इन 1991 when the new economic policy came, the biggest question was from where the money will come. Because neither our financial infrastructure was reliable or considered reliable by the foreign investors, and nor our physical infrastructure. Na airport the, na roads the, na railways the, nothing. Then how come the money will come in the market, initial money, and we were bankrupt? सोना गिरवी था, तो कैसे होगा? तो बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर आता है, वो ये कहता है कि जो एवरेज सेविंग ऑफ इंडियन हाउस होल्ड है, इट इज अराउंड 20%. Because there is a tendency to save the money rather than spend. It is average 20%. ठीक है, जो बहुत गरीब होगा शायद 10% सेव कर पाता होगा, जो वेल ऑफ है वो 30-40% सेविंग सेव कर लेगा. द एवरेज सेविंग इज 20%. इफ वी कैन टेक दिस टू 10%, so the 10% saving will come in the market, and that will become the initial flow of capital. Then the research was done, who motivates for saving?
तो ये आया नाउ द वुमेन इन द फैमिली दे मोटिवेट फॉर सेविंग। अब वहां से शुरू हुआ टारगेटिंग कि अब इसका मतलब जो फ्यूचर की वुमेन है यानी उस समय की लड़कियां, उनका दिमाग घुमाना शुरू करो फॉर स्पेंडिंग, फॉर मार्केट फोर्सेस, फॉर ग्लोबलाइजेशन। और इसलिए आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग दोज हु हैव गॉट द अवार्ड, बट 1994 से 2003 के बीच में सारे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हमको मिले एंड सडनली दे स्टॉप्ड आफ्टर 2003। अभी मिला एक हरनाज कौर संधू को, और उससे पहले 1964 में रीता फारिया को। यानी सुंदर लड़कियां 94 से पहले नहीं होती थी भारत में, 2003 के बाद नहीं होती। एक्चुअली देयर वाज एन एजेंडा कि यंगर जनरेशन को एक बार निकाल के बाहर तो लाओ, वो पैसा बाहर निकालना है, और उसमें सबसे बड़ा टारगेट वुमेन। और उनको कहो कि ये आपका लिबरलाइजेशन है। मैं थॉट प्रोसेस छोड़ता हूं आप लोगों के सामने। जिस चीज को आज हम अपना अचीवमेंट मानते हैं, हमें उल्टा पढ़ाया जाता है। देयर इज समथिंग लाइक अल्ट्रा नेशनलिज्म। इन माय ओपिनियन, इन इंडिया देयर इज नथिंग लाइक अल्ट्रा नेशनलिज्म। देयर इज अ वेरी सॉफ्ट एंड सोबर नेशनलिज्म। इफ देयर इज वन थिंग अल्ट्रा, दैट इज अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म। एंड वेयर इट इज हैपनिंग, अब ये कहा जाता है कि आज महिलाओं ने पुरुषों की बराबरी कर ली है। देखिए साहब, घुड़सवारी कर सकती हैं, मशीन गन चला सकती हैं, फाइटर प्लेन चला सकती हैं, बॉक्सिंग कर सकती हैं। कभी आप सोचिए कि ये फाइटर प्लेन चलाना, बॉक्सिंग करना, घुड़सवारी करना, आर दे द मैस्कुलिन ट्रेट और द फेमिनिन ट्रेट? अगर यही करके बराबरी करनी है, इट मींस यू हैव इनिशियली एक्सेप्टेड दैट ऑल द फेमिनिन ट्रेट्स आर सेकंड रेट। हम तो तब मानते कि आप ये कहते कि नहीं ठीक है, वो पुरुष भी लहंगा पहन के दिखाए तब इक्वलिटी है। दैट हैज बिकम अ मैटर ऑफ रिड्यूकल। But if the woman becomes like human, it has become a matter of pride. Why? इसको कोई otherwise ना ले। जो मैंने कहा था, among all the civilizations of the world, the God is only male. तो इक्वलिटी मेल के लेवल पे आके होगी, फीमेल के लिए तो स्कोप ही नहीं है। तो देयर इज ओनली स्कोप फॉर मैस्कुलिन प्रॉपर्टीज, नो स्कोप फॉर फेमिनिन प्रॉपर्टीज। पर हमारे यहां क्या कहा गया है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे लिए राम है तो सीता है, श्याम है तो राधा है, शंकर है तो पार्वती है, विष्णु है तो लक्ष्मी है। हमारे यहां बहुत क्लियर है कि ये ऑप्शन है और वो ऑप्शन है। और इनमें कई बार लोग कहते हैं कि हमारे यहां इक्वलिटी नहीं है। हमने कहा वाकई इक्वलिटी नहीं है, हमारे यहां प्रोमिनेंस है। ये बताइए, सीता पहले राम बात पहले है? सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, माता पिता। और ये क्यों है? दिस इज नॉट जस्ट अ सोशल कोनोटेशन, दिस इज नॉट जस्ट अ कल्चरल कोनोटेशन। मैंने आपसे क्या कहा था? व्हेन द यूनिवर्स स्टार्टेड, इट स्टार्टेड विद एनर्जी, शक्ति। तो इस संसार में जो कुछ भी होगा उसमें शक्ति पहले रहेगी। एंड दैट्स व्हाई ऑल आवर थिंग्स which is being considered inspiring is feminine. गीता माता, गंगा माता, गौ माता, भारत माता, धरती माता, प्रकृति माता. Everything is feminine. All the virtues are feminine. Most of the virtues are feminine. कहते हैं दया, सहिष्णुता, उदासीनता, विद्या, and most of the negative traits are masculine. अहंकार है, ये बड़ा वो है, शैतान है, वगैरह वगैरह, आप देख लीजिए। बट हमारे माइंड में क्या भर दिया जाता है कि साहब ये इक्वलिटी नहीं थी। कारण क्या था कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है व्हाट वाज इक्वलिटी एंड व्हाट वाज स्पेशलिटी। मतलब थोड़ी वो थोड़ा एक गहरी बात भी हो जाती है, किसी को अजीब लग सकता है। हमारे यहां जितना तंत्र सूत्र है, दैट इज द एनर्जी इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, तंत्र सूत्र का उपदेश शंकर पार्वती को देते हैं। क्यों? शक्ति क्रिएट करनी है तो शक्ति का भाव अपने मन में लाना होगा। यू हैव टू कम इन द फेमिनिन माइंडसेट, then only you can receive and transform your energy, because transforming and creating a new life is the sole prerogative of women. And in Tantra, you do not just understand, you transform yourself.
When you transform yourself, you have to have, एक शब्द यूज होता है संस्कृत का, अगर आप में से लोगों को समझ में, स्त्रैण ग्राह्यता, यानी किसी भी विषय को स्त्री के समान ग्रहण करने की क्षमता. So that's why Shankar is giving discourse to Parvati. You have to come in the mindset of Parvati. इसलिए मैंने कहा ये इतना वास्ट एक्सपेंशन है हमारे थॉट प्रोसेस का. राम की कथा उसको रिप्रेजेंट करती है, और इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर तुलसीदास जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, तो सिया राम क्यों कहा? क्योंकि जो शक्ति है और वो जो एलिमेंट है वो दोनों सदैव साथ ही साथ रहते हैं. पूरे यूनिवर्स में वो सदैव साथ होगा. अब यहां पे एक दो पॉइंट और बता देता हूं जिसमें कभी कभी आप लोगों के मन में ये फीलिंग आती होगी कि साहब शमशान में स्त्रियों को नहीं जाने दिया जाता है. अरे इक्वलेंसी की बात है. शबरीमला मंदिर में क्यों महिला नहीं जाएगी? देखिए ये कैसे हमारे दिमाग में भरते हैं. यू नो देयर आर सेवरल टेम्पल्स इन केरल इन विच द मेल इज नॉट अलाउड. वन इज कोटक्कल भगवती. किसी ने क्वेश्चन इशू बनाया? नहीं. इवन आप नवरात्र करते हैं तो 9 कन्याएं खिलाते हैं, तब तो नहीं कहते 4 लड़के भी खिलाने चाहिए. बिकॉज आवर्स इज अ वेरी डाइवर्स एंड इवॉल्व कल्चर. जैसे एक है केजी नर्सरी, एक ही टीचर सब पढ़ा देगा. जब आप 10th 12th में आएंगे तो एक टीचर नहीं 4-5 टीचर पढ़ा सकते हैं. ग्रेजुएशन में अलग अलग, पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग, और पीएचडी में एक एक टॉपिक का एक एक स्पेशलाइज टीचर होगा, सब्जेक्ट का नहीं. तो हमारे यहां वो इतना डाइवर्सिफाइड है कि वो एक एक टॉपिक का अलग अलग है. अब मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूं. जैसे हमारे यहां कहा गया है शमशान के जाने के पीछे रीजन क्या है. हमारे यहां शमशान इज नॉट बरियल, इट इज नॉट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास इज नॉट गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू मास. वो तो 19th सेंचुरी की साइंस थी. 20th सेंचुरी में कहा मास एनर्जी कन्वर्जन. द मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. फाइनल इमेंसिपेटेड. द टारगेट इज नॉट in our system, the target is not to sit for a judgment day. The target is to get moksha, the final emancipation. So if you are going at a place where from thousands years there is a consistent vibration of emancipation, dissolution, till anybody is having the vibration of creation and going to the place where there is a strong, staunch vibration of dissolution, there has to be some anomaly. अब कोई कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? रेडिएशन के रूम में जाइए तो ऐसा तो बहुत लोग कहेंगे हम तो रेडिएशन में गए कोई फर्क नहीं पड़ा. फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो आगे पता चलेगा. अब जहां पर क्रिएशन की प्राइमेसी है, गोद भराई में पुरुष नहीं आएगा, बिकॉज देयर दैट संस्कार द क्रिएशन ऑफ इज देयर. और आपको ये भी बात बता दूं, इसलिए मैंने कहा कि कहीं पर एक चीज की प्राइमेसी है, कहीं दूसरी चीज की प्राइमेसी. इट्स लाइक ए पीएचडी. One topic is having this supremacy, one topic is having that thing important, but हमारे यहां कह दिया गया नहीं साहब, जिसको वो केजी के लेवल से जब देखने की कोशिश करता है पीएचडी की किसी चीज को, तो उसे उसमें कुछ एनिमली नजर आती है. उसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या किया जाए. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 4 - 3 = 1 होता है. अगर 3 - 4 आप लिख दें तो क्लास 2nd 3rd में जब भी हम सब ने सीखा होगा तो टीचर डांट देती थी, आर यू फुलिश, you don't understand कि 3 - 4 is not possible. But 3 - 4 is -1, and the square root of -1 is the base of all the ballistic equations by which the intercontinental ballistic missiles are made. For that you have to be at the level of at least MSc mathematics, then you will be able to understand the negative integers and negative integers का square root. इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहां हर चीज का एक अलग सिग्निफिकेंस, एक अलग इंपॉर्टेंस था. तो भगवान राम ने, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये मंदिर बनने जा रहा है, सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म करते हैं. इट इज, सम पीपल आर सेइंग इट इज हैपनिंग आफ्टर 500 years. थोड़ा और बड़ा सोचिए. एंटायर नॉर्दर्न इंडिया में, दिल्ली और आसपास, एक टेंपल बताइए 200 साल से अधिक पुराना हो. नो, एज इट इज कोई नहीं बचा. पूरे नॉर्थ इंडिया में एक भी टेंपल ऐसा नहीं बचा जो 1000 साल पहले के अपने ओरिजिनल स्वरूप में हो.
केवल साउथ में बचा। तो आप समझिए फ्रॉम कश्मीर टू कलकत्ता 1000 साल के बाद एक ग्रैंड ओरिजिनल टेंपल बनने जा रहा है। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस कंट्री में आने जा रहा है। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। आप ये देखिए हाउ इट ब्रिंग्स द कंट्री टुगेदर। आप में से जो लोग रामेश्वरम गए होंगे तो वहां जाइए तो 22 कुओं के जल से स्नान कराया जाता है। एट द सदर्न टिप ऑफ द कंट्री यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू अयोध्या। राम वन गमन पथ में आप कर्नाटक में हो तो हनुमान जी की याद आएगी, किष्किंधा में होंगे तो आज का आंध्र तो वहां याद आएगी, पंचवटी तो वो नासिक में है, तो दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में है, तो चित्रकूट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। दैट्स हाउ द कंट्री गेट्स कनेक्टेड। दैट इज द रियल पावर ऑफ नेशन। और मैं फाइनली कहूंगा कि आजकल जो बातें कही जाती हैं कि मार्केटिंग के द्वारा, कैंपेन के द्वारा कोई चीज हो सकती है, तो इफ आई आस्क यू विच इज द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ पीपल ऑन अर्थ? कुंभ। ऑन द पीक डे, ऑन मौनी अमावस्या 2.5 से 3 करोड़ लोग आए थे। बताइए इतना बड़ा किसी पॉलिटिकल रैली में आते हैं? किसी फिल्म स्टार के लिए कोई आया है? विदाउट एनी कैंपेन पत्रा में निकलता है फला तारीख को मौनी अमावस्या और मिलियंस ऑफ पीपल पहुंच जाते हैं। दिस इज द लेजिटिमेट डिराइविंग फोर्स ऑफ द कंट्री एंड दिस लेजिटिमेट डिराइविंग फोर्स वाज सप्रेस्ड। अब ये उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। नाउ इट इज कमिंग अप, जिसे कहेंगे अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। एंड नॉट ओनली दिस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एम्फसाइज। मुहूर्त कितने का है? 84 सेकेंड का। एंड इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस। एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन व्हाट? ऑन हिंदू पंचांग। विक्रम संवत 2061 एंड युगाब्द 5125। 5000 साल पहले आप तो क्या कहते थे कि आसमान के परे एक जन्नत है जिसमें बड़ी लाइट है और ये आसमान में उसके छेद हैं जिससे तारे दिखाई पड़ते हैं। टिल 1633 द पीपल वर सेइंग कि सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। यही सही है। इफ समबडी सेड अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ, गैलीलियो, he was considered as a criminal. He was in the list of convicted criminal in the eyes of church. Till which year? Till 1992. Pope John Paul II removed the name of Galileo from the list of the convicted criminal in the eyes of church in 1992, when the first satellite Sputnik went to space in 57, the first man entered into space, Yuri Gagarin, in 61, man landed on the moon in 69, and the satellites were roaming around the world in 1980s. Still he was convicted criminal by the church. और कोई नहीं कहता कि आपका धर्म रूढ़िवादी था। आपके धर्म में से चीज हटाइए, ये स्टीरियोटाइप समझिए। और हमारे यहां द कैलकुलेशन इज सो accurate that you go and search the statement of Carl Sagan, who has devised and composed the first message on a first thing which has gone beyond solar system, that is Voyager 2 and Voyager 1, which was sent in 1978. These are the two satellites which had gone beyond solar system, where the message is composed for extraterrestrial civilization. He was the greatest cosmologist. He died in 1996. उसका वीडियो अवेलेबल है, जाके देखिए। वो बहुत कैटेगोरिकली कहता है only the ancient calculation, astronomical calculation of Hindus matches with the modern scientific calculations. वो ये कहता है कि बाकी थाउजेंड्स में रह गए, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड की बात करते हैं, 14,000, 30,000, 37,000 से ऊपर नहीं गया। मायंस ने लाख की बात की, सिर्फ हिंदू थे जिन्होंने बिलियंस की बात की, और उससे हमारा मजाक उड़ाया जाता था। क्या एब्सर्ड बात कहते हैं, ये परपीचुअल क्रिएशन डिस्ट्रक्शन हो सकता है। दे वर लाफिंग एट अस। वो कहते थे ये बिलियंस ऑफ ईयर क्या होता है। दे वर लाफिंग एट अस। नाउ द साइंस इज लाफिंग एट देम। अब समझ में आ रहा है कि कितने बिलियन ईयर से पहले क्या क्या होता था और कैसे क्रिएट होता था। इसलिए
मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आप सब ने अगर साइंस फिक्शन मूवीज देखी होंगी, टाइम ट्रेवल की बात होती है. नाउ एनीबडी कैन ट्रेवल अहेड इन द टाइम एंड ट्रेवल पास्ट इन द टाइम. Just 100 years back, this thing was said absurd, illogical. It's not possible. ठीक? रामायण कैसे लिखी गई है? राम के काल में नहीं, महर्षि वाल्मीकि ने पहले ही लिख दी थी. कहा कि कहानी ऐसा कैसे हो सकता है? मगर अब तो माना जाता है कि थ्योरेटिकली तो हो सकता है. Somebody can go ahead in the time and see what is happening. महाभारत कब लिखी गई? वैशंपायन के द्वारा परीक्षित के समय में, पास्ट में. और जब ये कहा गया कि वहां पर व्यास ने जाकर पास्ट में ट्रेवल करके महाभारत के पात्रों से बातचीत की और तब लिखा, कहा कहानी है, एब्सर्ड है, बकवास है, कैसे हो सकता है? नाउ इट इज बिकमिंग प्रूवन कि टाइम ट्रेवल आगे भी हो सकता है, टाइम ट्रेवल बाद में भी हो सकता है. इसलिए मैंने कहा कि ये जो 84 सेकेंड्स का परफेक्ट मुहूर्त है, आप सोचिए ऐसा कैलकुलेशन, कैन यू give any example anywhere in the world in which they are having such a precise calculation in seconds, and still we are said that we are unscientific. ये अपने आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. और वैसे ऑन द लाइटर नोट एक और बात कह दूं, आई वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन राम मंदिर मूवमेंट व्हेन आई वॉज यंग बॉय. और उस समय जो कुछ भी डिसीजंस लिए गए थे, दे वर वेरी मेटिकुलसली कैलकुलेटेड एस्ट्रोनॉमिकली. 9th of November 1989, the day on which the first Shila Pujan was done, was Devothani Ekadashi. And 30th of October 1990, on which the famous Car Seva has happened, इट वॉज ऑल्सो देवोत्थानी एकादशी. रिकॉर्ड ना करिए कोई, मेरा कहना है. तो वैसे तो आप कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फिर भी. और ये चांस मानिए कि 9th November 2019 when the judgment came on 8th and 9th November, it was Devothani Ekadashi. Devothani Ekadashi is considered the day on which the god arise. अब ये भी एक संयोग की बात है कि जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, ब्रिटिश टाइम से मुगल टाइम के जो डॉक्यूमेंट्स थे, तमाम चीजों के डॉक्यूमेंट खराब हो गए थे. इसके डॉक्यूमेंट्स बचे हुए थे. जो फैक्ट्स आए, ना पानी ने खराब किया, ना दीमक ने खराब किया. ये भी एक चांस की बात थी कि वो बचे रह गए. अब जो ये मुहूर्त है, जो अभी उन्होंने बोला, सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत योग है और द्विपुष्कर योग है, पुनर्वसु नक्षत्र. आपको ये माने या ना माने, मगर एक आपको मजेदार बात बताऊं, those who used to ridicule and criticize astrology now suddenly they have become the expert of astrology. नहीं, अब अंधविश्वास नहीं है साहब, ना, अब तो ये वाला मुहूर्त अच्छा है, वो वाला मुहूर्त अच्छा है. तो इसके लिए मैं कहूंगा कि हाँ, कम से कम मुझे इस बात का संतोष है कि अब मैं देखता हूं टीवी डिबेट में जो घोर लेफ्टिस्ट हैं, जो कहते हैं कि आई एम एथीस्ट, वो भी रामचरितमानस की चौपाई कोट करते हैं. जो ये कोर्ट में गए थे, द एस्ट्रोलॉजी इज ए ब्लाइंड फेथ एंड हाउ इट इज टू बी प्रोपोगेटेड, वो अब मुहूर्त का एग्जाम्पल देते हैं कि ये वाला मुहूर्त अच्छा नहीं है, वो मुहूर्त अच्छा नहीं है. दोज हु हैव पुट शंकराचार्य इन द जेल, नाउ दे प्रेज शंकराचार्य. मुझे लगता है कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं जब से दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं. तो मैं, बहुत लंबा समय नहीं है मेरे पास, बाद में आपके कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा. आई जस्ट वांट टू से a huge transformation is taking place, as Prime Minister had said in the last 15th of August. First I have quoted the first 15th of August, last 15th August he said that these 25 years are Amrit Kal, when India will be transiting from 75 years of independence to 100 years. And these 25 years will lay down the foundation of India, which will guide us for next 1000 years. So we are the organization and ideology which doesn't think in terms of one election or two election or 5 years or 10 years. Our
thing is not election oriented, our thing is civilizational oriented. We think and we thought about India what was 10,000 years back, and we think what is going to be there after 1,000 years. And that's why I am saying, ये माना जा रहा है ना कि ये मंदिर ऐसा बनाया गया है कि 1000 साल तक रहेगा. तो 1000 ईयर का बेस है. और आप वैसे भी देख लीजिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख लीजिए. फाइनली मैं सिर्फ आपसे कहता हूं, सिंस आई एम एन स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, तो आई कैन से द पावर, एंड आई एम इन द पॉलिटिक्स, सो द पावर structure of the world changes with technology. When there is a paradigm shift in technology, there is a paradigm shift in power. Second World War, till Second World War, the power center of the world was Europe, Britain, France and Germany. And after Second World War, the power center shifted to America. Why? Because America created atom bomb. So the technology shifted, the power paradigm shifted. So if we want to change the power paradigm, we have to fundamentally change the paradigm of technology. You follow the technology, you become a follower, you can become a rich person, but you cannot become a leader. America became leader when they created this atom bomb, when they created this IT revolution. अब हमें क्या करना होगा, मैं एक ही एग्जांपल देता हूं. जैसे मेडिकल में कितनी भी आप रिसर्च कर लीजिए, एफडीए से बहुत पीछे है, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से. इफ यू क्रिएट एंड क्लिनिकली प्रूव द योगा, then in 80 to 90% cases you doesn't need this. आपने बिलियंस ऑफ डॉलर जो लगाए फार्मास्यूटिकल में, वो आपको मुबारक. इन 80% थिंग्स वी डोंट नीड. और इसलिए जैसे प्राइम मिनिस्टर ने योगा डे शुरू किया था, तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि पैराडाइम शिफ्ट हमारे पास उसका एलिमेंट है, एंशियंट रिजर्वायर ऑफ नॉलेज ऑन विच वी कैन पैराडाइम शिफ्ट. और वैसे भी समझ लीजिए, जरा पावर सेंटर का शिफ्ट देखिए. 2500 years back, India was a power center of the world, both economic power center, military power center and intellectual power center. When India's decline happened, which empire became the most powerful? King Darius of Persia, the Persian Empire. Today is Iran. When Iran declined, Mesopotamian Empire or the Byzantine Empire. Today is Iraq, Baghdad. Then which empire rose to the power? Turkish Empire. Today is Turkey. Then which empire came to power? Roman Empire. Then the Eastern Roman Empire's capital was Constantinople, today is Istanbul of Turkey. Then comes the Western Roman Empire, today is Rome. And after that, in Europe, the most powerful power center became Portugal and Spain. Then the power center shifted to Britain and France. Look at the pattern of shifting of the power. Then power center shifted to America. In America, the most prosperous belt is San Francisco, Los Angeles, the West Coast. Then the power center shifted to most prosperous country became Japan. Then come in the last 50-60 years, the tigers, tiny tigers of Asia Pacific, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Macau. Then come in the last 25 years, China. What next? तो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, यही समय है, सही समय है. और इसीलिए इसी समय पे भगवान का मंदिर बनना था, बिकॉज ये कोई तारीख नहीं थी जो पूछते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे. ये तारीख नहीं थी, ये पूरे साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था जो इंडिया की कॉन्शियसनेस को राइज करते हुए. सो द टाइम हैज कम फॉर इंडिया टू मोटिवेट द वर्ल्ड एज जगत गुरु, not to dominate the world as superpower. Up till now, the world has seen various superpowers who were dominating the world, exploiting the world. We will motivate the world and guide the world. अब आप कहेंगे तो थ्योरेटिकल बात है. तो योगा डे पे जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने 145 कंट्रीज को एक साथ यूएन हेडक्वार्टर पे किया था, 170 कंट्रीज हैव jointly proposed the yoga day. तो if 170 कंट्रीज में एक भी व्यक्ति योगा करता होगा, तो he gets inspired by the ancient wisdom of India. क्योंकि योग, ये भी समझ लीजिए, वेदों के 6 वेदांग हैं, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत. उनमें से एक योग है, प्योरली एब्सोल्युटली वेदों से निकला हुआ है. इसको कहने में क्यों प्रॉब्लम? भाई जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स कहते हैं, ऐसा तो नहीं कि मैकेनिक्स न्यूटन से पहले काम नहीं कर रही थी. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वर्नर हाइजेनबर्ग थ्योरी ऑफ आइसोटोनिटी, तो क्यों नहीं कहते भाई वैदिक विजडम ऑफ योगा? तो इसलिए हमारा टाइम आ गया है. वी हैव टू बी वेरी क्लियर. और आप सब लोग मिलके बस केवल वो चीज जो प्राइम मिनिस्टर ने कही थी,
दो चीजें, अगर हम इंडिया को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी, दो चीजें और करनी है, गुलामी की मानसिकता से अपने को अलग करना है, टेक आउट द क्लचेस ऑफ स्लेवरी विच वर हैविंग। और ये ज्यादा बड़ी लड़ाई है। क्यों? फ्रीडम फाइट वॉज कि आप जेल में हैं, यू आर इन द प्रिजन, यू नो दैट आई एम बीइंग इन प्रिजन, आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, एंड दिस इज लाइक यू हैव बीन ड्रग्ड। आपको तो ड्रग खिला दी गई है, एंड यू आर थिंकिंग दैट दिस इज फॉर द गुड ऑफ मी, ये मेरे अच्छे के लिए है। तो सुषमा स्वराज जी ने 1996 में 13 दिन की सरकार के समय अपनी स्पीच में एक सेंटेंस बोला था कि लुटियंस जोन में तब तक आप इंटेलेक्चुअल नहीं होते जब तक आप अपने भारतीय होने पे ग्लानि और हिंदू होने पे शर्म का अनुभव ना करें। तो अब वो शर्म से गर्व के अनुभव का समय आया है, और फिर मैंने कहा किसी के अगेंस्ट में नहीं है, इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीबडी, इट इज नॉट टू कैप्चर एनीबडीज लैंड एज भगवान राम हैज डन, इट इज टू कैप्चर द हार्ट्स। इसीलिए भगवान राम इसलिए बड़े नहीं हैं कि ज्यादा बड़ा इलाका जीता, इसलिए बड़े हैं कि ज्यादा बड़ा त्याग किया। वरना रघु का राज राम से बड़ा था, महाराजा रघु का राज, महाराजा अज और उनके जो प्रीडिसेसर्स थे उनका राज बड़ा था, पर वो इसलिए फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड with the very famous poem of अटल बिहारी वाजपेयी जी। देखिए, उन्होंने कहा दुनिया का इतिहास पूछता ग्रीस कहां, यूनान कहां है, सब खत्म हो गए, वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। दुनिया का इतिहास पूछता ग्रीस कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। And in the 75 years we have achieved a lot but lost also so many things। तो इसलिए अटल जी की उसी कविता की पंक्ति से समाप्त करता हूं, स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, अभियान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद। We have about 10 minutes for question and answers. Can we be brief and sharp, please? You spoke so well that I have goosebumps. Question मेरा ये है कि जो सीता जी के लिए बोलते हैं कि लक्ष्मण जाके उनको वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आए थे, आपने इतनी चीज़ों के तथ्य बताए हैं, तो प्लीज़ इसका भी बताइए कि सच क्या है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। पहली बात, जब राम को वनवास हुआ तो सीता ने त्याग करके दिखाया, तो लीला तो तब पूरी होनी थी जब दोनों तरफ से बराबर हो। जब, अब यहां का एक और एंगल समझिए, किसके आधार पे किया गया? एक धोबी के कहने पे। धोबी सिंबलाइजेज द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द लोएस्ट पेडेस्टल ऑफ द सोसाइटी, किंग सिंबलाइजेज द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द हाईएस्ट पेडेस्टल ऑफ द सोसाइटी, एंड वाइफ द मोस्ट बिलीवेड वन। राजधर्म के निर्वाह के लिए, और अगर आप लोगों को फिर भी कंफ्यूजन हो तो जरा रामायण सीरियल में जाके वो वाला एपिसोड देख लीजिएगा। दैट थिंग फर्स्ट कम्स इन द नॉलेज ऑफ भगवान राम, बट राम वॉज हेजिटेंट इन डिस्कसिंग दिस थिंग विद सीता। देन इट कम्स इन द नॉलेज ऑफ सीता, एंड सीता कंपेल्स भगवान राम दैट फॉर द अपहोल्डिंग द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ राजधर्म आई शुड डू दिस। और जब वो जाती हैं तो उसके बाद भगवान राम कभी बिस्तर पे नहीं सोए, वो कुछ की उस पर सोए हैं, उन्होंने सदैव कंदमूल फल खाए हैं। और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, रामायण का एंड कहां पे होता है? रावण पर राम की विजय से नहीं, राम के राज्याभिषेक पे नहीं। अंत में जब राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लवकुश रोक लेते हैं और राम की सारी सेना को परास्त कर देते हैं और राम स्वयं युद्ध करने के लिए आते हैं, तब सीता जी कहती हैं इनसे युद्ध मत करो, ये तुम्हारे पिता हैं। तब अयोध्या की सारी जनता जिसने उन पर प्रश्न उठाया था, वो अपनी गलती मानकर कहती है कि वापस आ जाइए। सीता जी नहीं वापस आती हैं और धरती में समा जाती हैं, अर्थात रामायण का अंत। अब इसके साथ पहले एक और चीज होता, महाभारत का अंत कहां पे है? कौरवों पर पांडवों की विजय से नहीं, युधिष्ठिर के राज्याभिषेक पे नहीं एंड होता है, ना यादवी वंश के नाश पे। भगवान कृष्ण की मृत्यु या शरीर छोड़ना कैसे हुआ? वो बहेलिये का तीर लगा गांधारी के श्राप से।
गांधारी ने कहा था ना, जैसे मेरे बेटे की मृत्यु हुई, ईश्वर को भी श्राप लगा। अर्थात रामायण और महाभारत दोनों का अंत आसुरी शक्तियों पर दैवीय शक्तियों की विजय से नहीं, स्त्री के सतीत्व की ईश्वर के ईश्वरत्व पर विजय पे समाप्त होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनके यहां तो ईश्वर पुरुष ही है, तो उसमें स्त्री का तत्व आएगा कहां से? और स्त्री वहां सब स्टैंडर्ड ही है। हाँ, मगर मैं कहूंगा एंशियंट टाइम में थी, जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी। ये भी एक इंटरेस्टिंग बता दें, आप जाके जरा चेक करिएगा, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में द गॉडेस जो कि रियल में क्रिएशन और पावर की गॉडेस है, व्हाट इज इट्स नेम? MAAT। मात है ना, तो मात्र से ही बना होगा। एंड द गॉड ऑफ क्रिएशन इज PYTAH, पिता। And the first king who's considered that Pharaoh descended is RAMSES। ठीक? और जहां से वो मानते हैं डिवाइनली दे वर क्रिएटेड, MANES, मैनिस, मनु से बना हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा रियल में इंडिया वॉज हैविंग अ ग्लोबल इंपैक्ट, इंस्पायरिंग इंपैक्ट। पर जो आपने सवाल किया, मैं फिर कहता हूं, देखिए प्रेम के लिए राजधर्म का परित्याग तो बहुतों ने किया। सलीम अनारकली से लेके हेनरी द 8 से लेके लुई द 16 से लेके चार्ल्स तक बहुत हैं, पर राजधर्म के निर्वाह के लिए प्रेम का परित्याग और दोनों ने समान रूप से निभाया, और अंत में जो सीता जी के सतीत्व की विजय हुई। बट अफसोस क्या है, ये भी मैं कह दूं, आज के ज़माने में तो नई पीढ़ी को ये बताया जाता है ना। देखिए एक पॉइंट में, राम और रावण में, रावण हर चीज़ में बड़ा था राम से, रुपए में, पैसे में, पावर में, नॉलेज में। भगवान का पुजारी भी वो बड़ा था। वो कहता मुस्सा पंडित मुस्सा जोधा और ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा। इतने बड़े तो राम भी नहीं थे, तो फिर राम किस आधार पे रावण से जीत गए? चरित्र में बड़े थे। बट अफसोस आज की यंगर जनरेशन को कहा जाता है, वो एक स्वामी विवेकानंद 100 साल पहले कहते थे ना, इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, इन अवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। और आज वो गाना चलता, मैं क्या करूं, मैं सारा कैरेक्टर ढीला है। तो जब चरित्र ही छूट गया तो एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो वो दर्शाता है अब क्या है कि ना सत्व का महत्व रह गया, ना चरित्र का महत्व रह गया, ना सतीत्व का महत्व रह गया। पर एक बात समझ लीजिए, हो सकता किसी को मेरी बात एब्सर्ड लगे, जो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी समझ में आएगा। न्यूक्लियर बम के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 100% प्योर यूरेनियम। और सारे न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ नहीं करते हैं, केवल वो 100% प्योर यूरेनियम में रहते हैं। तो अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को जितना प्योर करते चले जाएंगे, तब समझ में आएगा कि एटॉमिक पावर है कि न्यूक्लियर पावर है या कौन कौन सी पावर है। Sudhanshu ji, Ram Ram. I think his exposition was more powerful than the uranium. Sudhanshu ji, Ram Ram. Um, Yes, I would like to ask one question. Yes, Sudhanshu ji, Ram Ram. सोशल मीडिया पे ये बहुत हो रहा है कि प्राण मूर्ति के अंदर कैसे डाले जा सकते हैं, तो उसके ऊपर एनलाइटन कीजिए हमें थोड़ा। देखिए, जैसे कुछ रिलीजियस अंधविश्वास होते हैं, वैसे कुछ साइंटिफिक अंधविश्वास होते हैं। पहला साइंटिफिक अंधविश्वास ये है कि देयर इज नथिंग लाइक कॉन्शियसनेस इन दिस यूनिवर्स। साइंटिफिक अंधविश्वास कह रहा हूं। सेकंड साइंटिफिक अंधविश्वास है कि एवरीथिंग हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स इज रैंडम, देयर इज नो डिजाइन इन इट। क्योंकि डिजाइन की बात करेंगे तो डिजाइनर आ जाएगा। थर्ड है कि वॉट एवर यू थिंक एज अ कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट ए रिएक्शन ऑफ ए सेलुलर माइक्रो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एंड इन विच इट इज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जबकि फैक्ट क्या है, ये हमारे नॉलेज का लेवल नीचे होने पे हमें रैंडम नजर आता है और ऊपर होने पे डिजाइन नजर आता है। जैसे जस्ट 100 years बैक 3 दिन बाद पानी गिरेगा या नहीं, इट वॉज अ रैंडम मैटर। नाउ फ्रॉम सैटेलाइट यू कैन टेल दैट इवन आफ्टर 15 days इट विल रेन। इन द सेम मैनर हमारे यहां माना गया है एवरीथिंग इज कॉन्शियस। वो पुराना गाना था ना, वो मनोज कुमार की मूवी का, इतना आदर नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना सम्मान की भगवान इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। तो हमारे यहां मानना है एवरीबडी इज कॉन्शियस एनर्जी। इस पे इंपैक्ट ज्यादा हो गया है, इसलिए ये जड़ है। उससे थोड़ा कम इंपैक्ट है
तो वो वनस्पति है, उससे कम इम्पैक्ट है तो वो एनिमल है, उससे कम इम्पैक्ट है तो हम मनुष्य हैं। और उसमें जिन जिन लोगों का इम्पैक्ट कम होता चला जाता है, तो जिसको आप लोग कहते हैं ना कि थोड़ा हाईली एलिवेटेड डिवाइन की तरफ वो बढ़ते चले जाते हैं, तो वो चूंकि मानते हैं कि प्राण नहीं होता, हम कहते हैं प्राण होता है। और मैंने इसीलिए बोला अभी तो ये डेड एलिमेंट की न्यूक्लियर एनर्जी देखिए भाई, जिस दिन कॉन्शियस एनर्जी के न्यूक्लियर पे पहुंचेंगे तो कहानी कुछ और नजर आएगी। इसलिए जो प्राण प्रतिष्ठा है इसका एक कॉन्सेप्ट है, और इसलिए माना जाता है कि बाय योर कॉन्शियसनेस यू कैन इम्पार्ट इन दैट। अब कोई कहे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं छोटी सी बात कहूं, एक डंबल रखा रहता है, आप कहें डंबल आपके मसल्स को स्ट्रांग कर देगा, क्या एब्सर्ड बात करते हो, ये अपने आप तो हिल नहीं सकता 1 सेंटीमीटर, ये हमारे मसल स्ट्रांग कर देगा। उसको प्रॉपरली यूज करने से वो स्ट्रांग होता है। तो पत्थर में भी प्राण होता है, बस प्राण को आप वो कर सकें। एक इसमें आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। हमारे यहां गुरु शिष्य परंपरा कही जाती है। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड शिष्य। एक्चुअली में क्या हो गया, अब हम सब इतनी अंग्रेजी पढ़ने लगे हैं कि हिंदी, संस्कृत और भारतीय भाषा एकदम भूल गए, तो फंडामेंटल वर्ड्स ही हमसे गायब हो गए। शिष्य शब्द जो है हिंदी, संस्कृत या मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज में शेष शब्द यूज होता है, रेजिडुअल। शेष का एडजेक्टिव है शिष्य। तो बाहर माना जाता है एजुकेशन का मतलब यू हैव टू इंपार्ट द नॉलेज। हमारे माना गया एवरीबडी इज फुल ऑफ नॉलेज, ब्लिसफुल एटर्नल नॉलेज। सिर्फ उसके ऊपर एक सेटलमेंट ऑफ माया हो गया है, यू हैव टू रिमूव इट। तो जब आप उसको हटा देते हैं, जो शेष बचता वो शिष्य है, और गुरु का काम हटाना है। तो इसलिए कॉन्शियसनेस सब में बराबर है, बस जो उसको हटा ले जाएगा तो वो कॉन्शियसनेस उसमें दिखने लगेगी, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हम हो, या पेड़ के रूप में बरगद और पीपल हो, या पत्थर के रूप में भगवान शालिग्राम हो। Yeah, Richa? Yes, Can I Sudhanshu ji? ask Richa, please? Yeah. सुधांशु जी, आपने शंकराचार्य का जिक्र किया। एक पार्टी जो हमेशा धर्मगुरुओं, साधु संतों के सम्मान के लिए हमने जाना है, भारतीय जनता पार्टी को, तो जो शंकराचार्यों की आपत्ति हो रही है, जो इतने शुभ अवसर पर ये जो एक थोड़ी सी वो हो रही है, उस पर आपके क्या विचार है, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए, शंकराचार्य हमारे यहाँ एब्सोल्यूट अथॉरिटी माने जाते हैं, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से वो ऊपर माने जाते हैं। कोई और एग्जांपल बताइए जहां किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य आए हो कभी? सोमनाथ मंदिर में आए थे क्या? उनसे वो ऊपर एंड अबव है। और जो टेक्निकल इश्यूज वो कह रहे हैं उस पर तो हम अथॉरिटी नहीं है, दे आर द टेक्निकल अथॉरिटीज। और जो राम जन्मभूमि न्यास है, जो रामानंदी संप्रदाय के संत हैं, वो सारी बातें, और उसमें भी जो ऑब्जेक्शन कह रहे हैं, वो लोग कौन कह रहा है? शंकराचार्य से ज्यादा तो पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं, दोज हु हैव नेवर रिस्पेक्टेड शंकराचार्य। यस। और ये भी आपको एक बात बता दूं, पूरी के ही शंकराचार्य थे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, जिन्होंने वैदिक गणित निकाली थी। तो वैदिक गणित को इन लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया था। उनके जीते जी 16 वॉल्यूम चोरी हो गए थे। बाद में उन्होंने एक अपनी मेमोरी से दोबारा रिवाइव किया, व्हेन वी ट्राइड टू पुट फोर्थ इन सिलेबस, पूरा अपोज किया था। तो इसलिए वो एक टेक्निकल इशू है। पूर्व में वो किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, मगर ये भी बात समझिए, निश्चलानंद जी का पूरा स्टेटमेंट भी तो दिखाएं। वो ये कहते हैं कि हाँ, मोदी जी को मैं ये तो मानता हूं कि वो सनातनी हैं, तभी तो वहां जा रहे हैं, अगर वो सेकुलर के चक्कर में पड़ जाते तो वहां जाते नहीं। पूरी बात भी तो दिखाइए। तो ऐसा नहीं है, वो एक टेक्निकल इशू है जिसके ऊपर बोलने के लिए हम लोग कॉम्पिटेंट नहीं है, मगर मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के से लेवल से वो ऊपर की स्टेटस माना जाता है। सुधांशु जी, कैन आई आस्क? आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे कुछ बताएंगे प्लीज? कहाँ का? Where are you, please? Can you identify yourself? Yeah, Where are sorry, you, please? sorry. Yeah, राम मंदिर की आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? देखिए, वो तो एक बहुत विस्तृत विषय हो जाएगा, पर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। आपने अच्छा क्वेश्चन किया। तो बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेट हमारे दिमाग में है। ये भगवान राम की जो मूर्ति है वो किस कलर की है? ब्लैक। ठीक। हमारे यहाँ भगवान जितने हैं वो किस कलर के हैं? ब्लैक या डार्क? भगवान कृष्ण काले हैं, भगवान विष्णु क्या हैं? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम लक्ष्मीकांतम गगन सदृशम मेघवर्णम। मेघवर्ण के हैं। ठीक। शंकर जी भी नीले हैं,
भगवान कृष्ण काले हैं, और जब सीता जी जाती हैं वाटिका में स्वयंवर से पहले, तो देवी जी जो उनको आशीर्वाद दे रही हैं, तो क्या है, मन जा ही राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, गोरो नहीं कहा है, सहज सुंदर सावरो कहा है। अब ये भी एक मेंटल माइंडसेट है कि ये गोरा सुपीरियर होता है, किसने हमको बता दिया है? हमारे तो सारे भगवान डार्क हैं। ये जानते किसने बताया है? वही जिसने फेयरनेस वाली क्रीम बनाई है। मतलब जो लोग ऑलरेडी इतने एक्सेसिव गोरे होते थे कि वो सब, मतलब उससे ज्यादा व्हाइट हुआ नहीं जा सकता, जिनको व्हाइट कहते हैं, ये उन व्हाइट वालों ने फेयरनेस की क्रीम किस लेबोरेटरी में रिसर्च की, किसमें उसका स्टैटिस्टिकल फॉर्मुलेशन किया, मगर हमें बना के बेच भी दिया और हमने ले भी लिया। और वो डिवीजन क्रिएट करने के लिए कि देखिए साहब, नॉर्थ में वाले लोग थोड़े फेयर होते हैं, फिर साउथ में जाइए तो ऐसे होते हैं, ये डिवीजन क्रिएट करने के लिए था। तो उसमें से, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, वो तो एक अलग एस्पेक्ट होता है, मगर मूर्ति के कलर से मुझे एक बात ध्यान आई, तो मैंने कहा आपकी नॉलेज में डाल देते हैं। सुधांशु जी, हाँ, मैं आपसे पूछना, एक तो आपके टॉक ने भाव विभोर कर दिया हमें, थैंक यू फॉर दैट। मैं दो चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। एक तो मैं वाल्मीकि रामायण के सेशंस लेती हूँ छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से 15 साल की उम्र के लिए ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करती हूँ। मेरा क्वेश्चन जो आपसे ये है कि कहते हैं कि रोम राम के नाम से बनी हुई थी, रोम की नगरी, द सिटी ऑफ रोम, तो क्या वो ट्रू है? सेकंड क्वेश्चन ये है कि श्री राम पूरे विश्व को कैसे जोड़ते हैं, नॉट जस्ट भारत एंड नॉट जस्ट हिंदूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट पूरे विश्व को श्री राम कैसे जोड़ते हैं? देखिए, इफ देयर इज एनी वन कंट्री हुज किंग होल्ड्स द टाइटल किंग रामा, इट इज थाईलैंड। और आपको पता, कभी आप लोग बैंकॉक में जाएं तो जो ओल्ड पैलेस है, वहाँ पे गाइड बताता है कि उस पैलेस के चारों तरफ 256 गरुड़ बने हैं। और उससे पूछिए क्यों, तो कहता है इन आवर बिलीफ आवर किंग इज कंसीडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ हिंदू गॉड विष्णु एंड गरुड़ इज द व्हीकल ऑफ विष्णु, सो द एंटायर पैलेस इज डिजाइंड इन सच ए वे एज इफ इट इज सिचुएटेड ऑन द बैक ऑफ विष्णु। अब आइए, अगर कोई एक लेडी है, जहाँ फर्स्ट लेडी जिस कंट्री की मानती है वो कोरिया है, उसकी सूर्य रत्ना राजकुमारी से, अगर कहीं पे पर डे रामायण होती है और वो टेलीकास्ट होती है तो वो इंडोनेशिया है। अब आप आइए ऑन द वेस्ट साइड, जो भी आपने कहा, इटली में केव के अंदर ऐसी तमाम चीजें मिली हैं जिनमें, बल्कि आपको बताऊं कि ये जो टर्की और ईरान के और सीरिया के बीच में कुर्दिस्तान का इलाका, उसमें एक सुमई प्रोविंस है जिसके अंदर एक केव में बिल्कुल धोती पहने हुए, मुकुट लगाए हुए, भारतीय वेशभूषा में एक धनुष धारण किए हुए व्यक्ति इनग्रेव्ड है केव में, और सामने एक बंदर ऐसे बैठा हुआ है नीचे, बिल्कुल हनुमान जी वाली मुद्रा में। अब और आप वेस्टवर्ड चले जाइए, हॉन्डुरास जो एक कंट्री है नॉर्दर्न एंड सदर्न अमेरिका के बीच में, वो मंकी गॉड ऑफ हॉन्डुरास आप देखिए तो वो उसमें बिल्कुल गदा तक है हाथ में, और जैसे यूं एक घुटने के बल बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल वैसे है। तो तुलसी ने ऐसे ही थोड़ी कहा सिया राम मैं सब जग जानी, तो वो सब तरफ था, मगर पहले यहां जगेंगे अयोध्या में, तब तो दूसरी जगह समझ में आएंगे। और एक और बात आप समझ लीजिए, राम अयोध्या के ही राजा क्यों है और अवध के ही राजा क्यों है? जो मैंने कहा ना, डिवाइन एलिमेंट हमारे अंदर आता है, तो कब पहले हमें उस किंगडम का नाम अवध है, यानी हमने अपने को माइंडसेट को उस लेवल में लेना पड़ता, अवध, किसी का वध नहीं, किसी की हिंसा नहीं, किसी को डिस्ट्रॉय करने का माइंडसेट नहीं। फिर अवध की राजधानी क्या? अयोध्या, जहां कोई युद्ध नहीं, कोई द्वंद नहीं, देयर इज नो ड्युअलिटी, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। तब उसका राजा दशरथ होगा, तब उसका पुत्र राम होगा। तो अब ये राइज होगा, तभी मैंने कहा वी आर ऑल सेट टू राइज टू इंस्पायर द वर्ल्ड, और भगवान राम का मंदिर उसका एक लाइट हाउस बनेगा। एक सुधांशु जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सुधांशु जी इधर। अच्छा सुधांशु जी, आजकल ये नॉर्थ और साउथ टेम्पल्स का भी एक अलग से डिबेट शुरू हो गया, उसके बारे में कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। उसमें डिबेट की गुंजाइश ही नहीं है। साउथ में तो टेम्पल बचे रह गए, नॉर्थ में तो ज़्यादातर खत्म हो गए थे। पहले अपने आप को अलग कहते हैं और वो एक पॉलिटिकल चीज़, और जो देखिए, समझना। इसमें भी आपको एक मजेदार बात बता दूं, ये जो द्रविडियन पॉलिटिक्स की बात कही जाती है, ये पूरा एक ब्रिटिश षड्यंत्र था। मजे की बात जानते क्या है? द्रविड़ शब्द तमिल भाषा का नहीं है, द्रविड़ शब्द संस्कृत का है, और उसका मीनिंग जानते क्या होता है? मैंने वही कहा ना, अब आजकल हम लोग हिंदी संस्कृत भूलते जा रहे हैं। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, द्रविड़ मतलब दैट पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर, तो दैट इज द्रविड़।
और फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं बात बता दूं, जैसे तमिल में जो सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है दैट इज थिरुकुरल, जो उनके यहाँ मतलब बिल्कुल पायस रिलीजियस बुक मानी जाती है. इट इज हैविंग 1330 वर्सेस डिवाइडेड इन 3 चैप्टर्स. और वो क्या है? अरम परुल काम, धर्म अर्थ काम. तीसरे का तो नाम काम तमिल में भी है और काम संस्कृत में भी है. डिफरेंस नहीं है. मगर अभी उन्होंने फाइन आर्ट्स पे पूछा था तो मैं एक और बात बता दूं. फाइन आर्ट्स पे तमिल का सबसे बड़ा ग्रंथ है तोलिकप्पियम. यहां है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र. 9 रस माने जाते हैं, नाट्य में 8 ही रस होते हैं. 8 क्यों? शांत रस की अभिव्यक्ति पोएट्री में हो सकती है, ड्रामा में नहीं हो सकती, बिकॉज देर इज नो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द शांत रस. तो 8 ही रस होते हैं. और तोलिकप्पियम में 9 मकाडू हैं. मकाडू मतलब रस, और उसमें भी 8 ही होते हैं. 1 इज नॉन एक्सप्रेसिबल. और 8 का सीक्वेंस भी वही है तोलिकप्पियम में जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में. मगर इसीलिए जो पीएम ने कहा है ना, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, नॉर्थ साउथ में तोड़ना है, तमिल हिंदी में तोड़ना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड में तोड़ना है, दलित सवर्ण में तोड़ना है. ये जो डिविजिव फोर्सेस हैं इनके माइंडसेट से हमें बाहर निकलना है. Thank you. I think we may have to. आध्यात्मिक I'm sorry. I think chief guest is already running late. I'm just going to say one thing. Trivedi means somebody who knows 3 Vedas. I think today our Trivedi has given much more than what we can handle. So much of knowledge given to us in such a well understandable, capsulated way, and I think I request you to stand up for an ovation. The greatest power on earth is definitely storytelling, and thank you for telling us the stories that we have grown up with and genuinely inspired for the Amrit Kal. Can I call on Senior Vice Chair of YFlow Delhi, Payal Kanodia, to give the vote of thanks? Today's session on building a great nation, unveiling timeless wisdom of Lord Ram, has been very enlightening, and all the members at the Flow and YFlow have had a highly enriching experience. This has been a session that would help and guide all of us to understand the values of Lord Ram that were spread as Maryada Purushottam Ram and also as Raja Ram. We are much thankful to you, Dr. Sudhanshu, for sparing your time from your very busy schedule and guiding us through your extremely rich experience and knowledge. I'm sure all the members have enjoyed today's session, jointly organized by FICCI Flow and YFlow, and it would go a long way towards guiding our lives.